Okay, let's we start with our chapter number 9. In chapter number 9, we have done up to the topic number 9.8. Now, here we are going to do 9.9. Dynamic state of body constitute concept of the metabolism. Look here, try to understand what this want to explain. This complete thing we can compare with that of our traffic, our vehicle traffic. Let's look. This is the road divider. A vehicle is going toward this side. What happened? This is a square. Let we take here side A, side B, side C, side D. May possible this vehicle turns toward the D. May possible this go towards the B. May possible this turn toward the C. May possible it takes U-turn and go back to A. And not only one. बोलो यहाँ से भी दूसरा आ रहेगा. बोलो क्या हुआ? When this come here, this move here, तो ये भी ये साइड पे जा सकता है. May possible कि ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा. May possible these both are moving in same direction. May possible this move towards this one and this move towards this one. May possible this move towards this side and this move to this side. May possible कि ये इधर जा रहा है, ये यू टर्न लेके वापस आ रहा है. Same thing happen in our body. Instead of this vehicle, you can consider this as a biochemical molecules. Numbers of the biochemical molecules are present in our body. Thousands and thousands are there. Some are converting from as a substrate. They are A and they are to the B. In after few minutes or after few seconds, or even at the same time, two same A molecules. So one is going to turn into B and second one it turns into C, D. Numbers of thousands of molecules are there, but this is so perfectly arranged. There is no any confusion, collision. Directly they move from one substrate to other product. As for example, glucose. Substrate is glucose. This glucose turns into two molecules known as glyceraldehyde and dihydroxyacetone. What happened? Glyceraldehyde and dihydroxyacetone. This is the glyceraldehyde and this is the dihydroxyacetone. समझना क्या होता है. ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, ये दो बन गए. This dihydroxyacetone also turns into the glyceraldehyde. So now there are the two glyceraldehyde. One glyceraldehyde moved to form the pyruvic acid. This is the aerobic respiration. And second glyceraldehyde turns into the lactic acid. That is called as the anaerobic respiration. तुम समझ सकते हो क्या से क्या होता है. So numbers of molecules are there. This is the only example which you can easily understand. Look, let we have one more example. What we are eating. On eating we have the proteins in our food. This protein turns into the amino acids. Okay. अब बोलो क्या होता है. तो this amino acids, some of the amino acid turns into proteins. मीन्स हमने ये खाया था सीरियल्स पल्सिस वो सब, तो प्लांट प्रोटीन था, उसमें से उसके डाइजेशन होके एमिनो एसिड रिलीज हुए. वो डाइजेशन होके उसके एमिनो एसिड सेपरेट हुए, उसको ना बोलेंगे कैटाबोलिक.
अब वो एमिनो एसिड में से हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट वाला प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, तो उसको ना बोलेंगे एनिमल प्रोटीन। मैं तो बोलो ये प्रोटीन फूड का था, वो बोलो काय में कन्वर्ट हुआ, एमिनो एसिड। वो एमिनो एसिड में से क्या बना, दूसरे टाइप का प्रोटीन बना। ये एक प्रोटीन आया था, एमिनो एसिड बना, उसमें दूसरा प्रोटीन बना। सम ऑफ दिस एमिनो एसिड टर्न्स इनटू सम अदर फॉर्म। कौन से अदर फॉर्म होते हैं वो बाद में आएगा। मीन्स हाँ, सम ऑफ द एमिनो एसिड ऑल्सो टर्न्स इनटू अदर एमिनो एसिड। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अरे बहुत से प्रोसेस होते हैं। सो दीज ऑल आर द स्टेट ऑफ द लाइफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। इन दिस बायोकेमिकल रिएक्शन हाउ इट हैपन, उसका एक स्लाइड यहाँ पे मैंने आपको समझाया, उसको कंसेप्ट में रखोगे तो पूरा समझ में आएगा। डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट कंसेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑन पेज नंबर 152. What we have learned till now that a living organism, be it a simple bacterial cell or a protozoan, a plant or an animal, कोई भी living organism contain thousands of organic compound. You have studied many amino acids, alcohols, means glyceraldehyde, trihydroxyacetone phosphate, monohydroxy alcohol, triglyceride, diglyceride, lecithin, cholesterol, monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, primary, secondary, tertiary, quaternary proteins, lipids, form of the lipids, thousands of molecules are molecules. ये तो इतने ही बोले, अभी तो कितने हैं मेरे को ही पता नहीं, किसी को कोई डॉक्टर को भी पता नहीं कि क्या क्या होता है। These compounds are or biomolecules are present in certain concentration. अगर जो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो भी नहीं चलेगा, वो कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए। कितना कॉन्सेंट्रेशन क्या आप देखेंगे तो मोल्स पर सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक एक सेल के अंदर देखेंगे तो कितने पर सेल कितना मॉलिक्यूल्स है। बट जब हम उसको रिसर्च करेंगे तो इतना थोड़ा क्वांटिटी तो नहीं बनेगी, वो बीकर में जार में ज़्यादा बनेगी। तो डेट इज कॉल्ड मोल्स पर लीटर, कि 1 लीटर में तुम्हारा कितना मोल्स है न। लिविंग के अंदर एक्चुअल में कितना होता है, मोल्स पर सेल होता है। One of the greatest discovery that even made was the observation that all the biomolecules has a turnover. टर्नओवर, एक में से दूसरा, दूसरे में तीसरा, चेन रिएक्शन चालू रहती है। This means by that they constantly being changed into the some other biomolecules and also made from some other biomolecules. वो भी कन्वर्ट होता है और उसके जैसे दूसरे भी बनते हैं। टर्न ओवर करके ये पूरी जो सेंटेंस है उसको हाईलाइट करो, बाजू में टर्न ओवर को हाईलाइट करके 2-3 लाइन जो बनती है उसको ऐसा ब्रैकेट करके क्वेश्चन मार्क कर दो। नहीं ऐसा है तो बाजू में लिख भी दो टर्न ओवर। some other biomolecules. This breaking and making is through chemical reaction constantly occurring in living organism. Living organism constantly होता है। Together all these chemical reactions are called the metabolism. क्या बोलेंगे इसको, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हाईलाइट करके बाजू में क्वेश्चन मार्क करो, जो कि मेटाबॉलिज्म की दूसरी डेफिनेशन भी आएगी। बट इफ इट इज आस्क्ड यू हैव टू राइट दिस एज वेल एज, अभी सेकंड आती है वो भी दोनों लिखनी है, तो उसको क्वेश्चन मार्क करके वहाँ पे लिख दो अदर ऑल्सो, यहाँ से दूसरी एक्सप्लेनेशन भी है। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेटाबॉलिक का वही क्या है, ट्रांसफर, एक में से दूसरे में ट्रांसफर होना। A few examples of such metabolic transformations are removal of carbon dioxide from amino acid. Look, what food we are taking. Definitely that food has the amino acids. Suppose we have taken 100 moles of the amino acids. ऐसा हम कोई काइट नहीं कर दे समझने के लिए।
ये 100 मोल्स हमारे अभी लंच के अंदर बोलो कितने आए, 100 मोल्स ऑफ एमिनो एसिड्स आए, बट एक्चुअली इन आवर बॉडी रिक्वायरमेंट वाज ओनली ऑफ द 90। बोलो रिक्वायर्ड कितना था, 90 का था, तो 100 में से 90 यूज हो जाएंगे, प्लस कितने आए एडिशनल, कितने हो गए 10। सो दिस 10 आर देन यूज्ड इन टू कन्वर्ट इन अदर रिक्वायर्ड फॉर्म। ग्लूकोज भी बन सकता है, फैट भी बन सकता है, जो भी है। A few examples of such metabolic transportation is removal of carbon dioxide from amino acid, making a amino acid into the amine amine bond in a in amine. Removal of amino group in the nucleotide base, hydrolysis of glycolysis etc. मीन्स क्या, ये जो था एडिशनल एमिनो एसिड था NH2 COH HNR हमने स्टडी करा, ये उसमें से CO2 गया तो बोलो ये क्या बन गया, एमाइंस। एंड दिस एमाइंस आर यूज फॉर द न्यूक्लियोटाइड्स। बोलो न्यूक्लियोटाइड्स में DNA RNA, लास्ट टाइम ने DNA की स्ट्रक्चर करा है, वो हमने खाया था क्या, प्रोटीन। क्या खाया था, प्रोटीन। तो देखो बॉडी में क्या हुआ, प्रोटीन में से क्या कन्वर्ट हुआ, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में से रिक्वायर्ड तो एमिनो एसिड यूज होके वापस वो प्रोटीन बन गया। ये प्लांट प्रोटीन था, उसमें से डाइजेशन होके एमिनो एसिड बना, उसमें से रिक्वायर्ड 90 होके वो प्लांट हमारा प्रोटीन बन गया। 10 जो एडिशनल आए वो 10 में से क्या बन गया, एमिनो ग्रुप रिमूव होके ने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। क्या रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट टर्न्स इनटू एमाइंस। दिस एमाइंस टर्न्स इनटू द DNA RNA। ऐसे दूसरे का भी कन्वर्जन रहेगा, बहुत से रहते एग्जाम्पल, तुमको इतना ही याद रखना है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बॉन्ड ऑफ द इन ए डाइसैकेराइड एसेटा, कहाँ गया, एमिनो एसिड मेकिंग एन एमिनो एसिड इनटू द एमाइन। Removal of the amino group in nucleotide base, hydrolysis of the glycosidic bond in disaccharide etc. Hydrolysis of the glycosidic bond in disaccharide। तो पहले हम इसको थोड़ा डाइसेक्राइड समझ लेते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। Look, disaccharide means 2 molecules of the monosaccharide. Famous number 1 glucose and this second glucose। तो क्या होएगा, रिमूवल ऑफ H2O। सो दिस टर्न्स इनटू द माल्टोस। दीज आर द मोनोसेकेराइड्स। फिर ये लिख लेना, सब एग्जाम्पल पूरे होंगे जब। रिमूवल ऑफ H2O टर्न्स इनटू डाइसेकेराइड, हुआ इतना माल्टोस। कहाँ से आया, दिस माल्टोस हमारे फूड में रहता ही है। व्हेन वी आर ईटिंग ब्रेड और चपाती, ज़्यादा ईट करते हैं तो वो जो हमारे बॉडी में वो चपाती में स्टार्च था वो माल्टोस बना। अब क्या होता है हमारे बॉडी में, जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है तो बोलो ऐसा था ऐसा होगा, मीन्स वाटर रिमूव हुआ था तो वाटर ऐड होता है। बोलो ये दोनों ग्लूकोज को ज्वाइन करने के लिए कौन सा बॉन्ड था, हम सीख गए थे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मीन्स दोनों ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइंट होकर माल्टोज बना था, तब वाटर रिमूव हुआ था। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, वो माल्टोज में वाटर ऐड होता है, वाटर ऐड होके वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो बोलो क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज यूज होगा हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, स्टोरेज फॉर्म। ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन बन के स्टोर भी होगा, जो भी होना है वो बाद में होगा। चलो सेकंड, ग्लूकोज इज फिक्स। सेकंड वन इज द गैलेक्टोज। चलो ये दोनों है तो वाटर रिमूव हुआ, तो जो बना उसको बोलेंगे लैक्टोज। लैक्टोज देखा है कहाँ पे मिलता है, मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर रहता है। ये भी ऐसे दोनों को ज्वाइन करने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आया। जब हम मिल्क पीते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वो लैक्टोज का जो
पार्ट ए उसमें वाटर ऐड होता है और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज रिलीज होता है। मीन्स ये दोनों को ज्वाइंट रखने वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो हाइड्रोलिसिस हुआ, ब्रेक हुआ वाटर से और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज रिलीज हुआ। ऐसा ही ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बोलो ये दोनों में भी बोलो वाटर रिलीज हुआ, दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट हो गए तो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। दैट इज योर टेबल शुगर व्हाट वी आर ईटिंग एज अ शुगर। बोलो क्या हुआ, जब हम ये शुगर खाते हैं तो बोलो क्या होता है, हमारे बॉडी में उसमें वाटर ऐड होता है तो ये दोनों को ज्वाइंट रखने वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दोनों रिलीज होते हैं, तो इसको ना बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। तो तुमको आना चाहिए, आएगा ने, बोलो सब में ग्लूकोज तो कॉमन है तो ग्लूकोज याद नहीं रखने का, दूसरा सेकंड मॉलिक्यूल याद रखने का, इफ ग्लूकोज तो माल्टोस। गैलेक्टोस, गैलेक्टोस में बहुत अच्छा है जी, नहीं ये ए को निकाल दो, लैक्टोस, गैलेक्टोस तो लैक्टोस, गैलेक्टोस के साथ ग्लूकोज तो लैक्टोस, फ्रुक्टोस तो सुक्रोस। ये सब बने हुए होते काय से ज्वाइंट होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और ये सब डाइसेक्राइड हम खाते हैं जिसमें ये सब दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, उसमें वाटर ऐड होके ये रिएक्शन होता है। हमने ये खाया तो ये बनेगा वाटर ऐड होके, ये खाया है तो वाटर ऐड होके ये बनेगा। इफ यू हैव टेकन दिस बाय एडिंग द वाटर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड वी विल हैव दिस टू, लाइक दैट। अब बोलो इसमें भी क्या होता है, व्हेन वी हैव एडिशनल अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज, so in our liver with the help of the pancreatic juices, this glucose, pancreatic juices नहीं, pancreatic hormone insulin, this turns into the our storage form that is known as glycogen। कौन सा फॉर्म बनता है, ग्लाइकोजन, वो स्टोर देता है। फिर जब हमको भूख लगती है और खाना नहीं मिलता है, when we are doing a fast, that roja, that whole thing, so what happen, this glycogen are convert into the glucose। अरे इससे तो कितने एग्जाम्पल आएंगे, बोलो नॉट ओनली दिस, बोलो ग्लाइकोजन में से जब ग्लूकोज बनता है तो दिस ग्लूकोन इज यूज फॉर टर्न्स इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन, यूज फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इतने एग्जाम्पल आएंगे, इतने आगे जाके, अभी अपने तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट है, थोड़ा ये लिख लेने का, याद रखने का। बाय द नेक्स्ट ईयर यू विल बी अवेयर ऑफ द मिनिमम 200 to 300। We can list tens and thousands of the such examples. Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked in some other reaction। सिंपल नहीं होता है, अदर रिएक्शन के साथ लिंक है। ग्लूकोज, कोई बोलेगा सर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना, बट पहले ग्लूकोज आया कहाँ से, हमने फूड में माल्टोज लिया था उसमें से ग्लूकोज आया, फिर वो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना। कोई ने बोलेगा सर माल्टोज कहाँ से आया, माल्टोज डायरेक्ट है, नहीं हमने चपाती खाई थी उसमें स्टार्च था तो स्टार्च का माल्टोज बना। तो अब हमने क्या, ऐसा स्टार्च कहाँ से आया, तो डायरेक्ट स्टार्च नहीं था, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा तो कार्बन डाइऑक्साइड ने H2O मिल के ने फिर वो स्टार्च बना था। मीन्स अभी हमारे को इतना सिंपल है, बट यू शुड बी क्लियर विद दैट दीज ऑल आर द लिंक्ड ऑफ द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस। These are called metabolic. Sorry. Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation, but they are always linked in some other reaction. In other words, metabolites are converted into each other in series of link reaction called the metabolic pathway। हाईलाइट करो metabolic pathway और उसके ऊपर की 3 लाइन को ब्रैकेट के सामने क्वेश्चन मार्क कर दो और वहाँ पे आपने हाईलाइट करा है मेटाबॉलिक पाथवे, यानी पता चल जाएगा कि ये किसका एक्सप्लेनेशन है। इफ़ यू डू नॉट हैव हाईलाइटर देन ये क्वेश्चन मार्क करके बाजू में लिख दो मेटाबॉलिक पाथवे। हैज अ डेफिनेट रेट, so these metabolic pathways are similar to the automobile ट्रैफिक इन सिटी। अभी आपने किया था, एक आता है दूसरा कन्वर्ट था, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
metabolic pathway. These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city. These pathways are either linear or circular. Linear, एक में से दूसरा तीसरा, और circular, ऐसा राउंड होके. These pathways crisscross each other. That is, there are traffic junction. Flow of crisscross, एक में से दूसरा ऐसा एक दूसरे कन्वर्ट क्रॉस भी होते हैं, बट एक्सीडेंट होता नहीं है. There are traffic junctions. Flow of the metabolic through the metabolic pathway is definite and rate and direction like automobile traffic. This automobile flow is called the dynamic state of the body. This is also called as the dynamic state of the body. Constitutes. Highlight karo. What is the dynamic state of the body constitute? Another feature of this metabolic reaction is that every chemical reaction is catalyzed reaction. ये every reaction is a catalyzed. Why it is a catalyzed? They have the enzyme. Enzyme means those proteins. These are once again these are the proteins that have ability to increase. उसका function ही है to increase the rate of reaction. These are catalyzed reaction. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. Uncatalyzed कोई नहीं है, सब catalyzed ही है, सबके लिए होता है. एंड वो catalyzed भी बहुत पिकुलर है. ये इसको इसमें कन्वर्ट करता है, वो catalyzed इसको इसमें कन्वर्ट करेगा कि दूसरे कोई में यूज़ नहीं है. ये दो कोई इसमें जो कन्वर्ट करता है उसके लिए वो इसको ही वापस यूज़ कन्वर्ट करता है कि दूसरा उसके लिए नहीं है. Another features of this metabolic reaction, even chemical reaction, is a catalyzed reaction. There is no uncatalyzed metabolic reaction in living system. Even carbon dioxide dissolve in water, a physical process. Carbon dioxide water में dissolve होता है, natural physical process है. In a catalyzed reaction is in living system. हमारे सेल में, हमारे बॉडी में क्या होता है, वो अपने कैसा आएगा, catalyze है, उसके लिए catalytic activity होती है. The catalyst which has done the rate of the given metabolic, यहाँ से highlight करो. The catalyst which has done the rate of the given metabolic reaction conversion are also proteins. वो भी प्रोटीन के ही बने हुए. These proteins with catalytic power are called named as enzyme. इसको enzyme बोलते, तो enzyme की definition में भी ये आ सकता है. जो कैटेलिस्ट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है, हेस्टन करता है, स्पीड बढ़ा देता है, उसको ने क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे. एंड दिस एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी एंड बोलेंगे सर ये प्रोटीन थोड़ा कन्फ्यूजन होता है. थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होता है, तुम खुद कन्फ्यूज होते हो. क्यों? प्रोटीन्स आर द मेड बाय दिस एमिनो एसिड लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी जो भी बना. ये बनने के बाद में क्या होता है, कोई प्रोटीन है वो हमारे मसल्स में है, कोई प्रोटीन है हमारी स्किन में है, कोई प्रोटीन हमारे विज़न के लिए है, कोई प्रोटीन हमारे बोन्स में है, कोई प्रोटीन ऐसा कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है, एंजाइम बोलते हैं. कितना प्रोटीन, और कोई कैरियर प्रोटीन है, मीन्स दे आर मेड ऑफ द एमिनो एसिड्स, सो दे आर नोन एज द प्रोटीन्स. But depending on their function, they are different. If they hasten the rate of reaction, they are called the enzymes. चलो टॉपिक नंबर 9.10 metabolic basis for living. Metabolic pathways can lead to a more complex structure from a simpler structure. For example, acetic acid become cholesterol, or lead to a simpler structure from the complex structure. For example, glucose become lactic acid in our skeletal muscle. Means ये metabolic acid reactions क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी हो सकता है और सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. कैसे देखो, pathways are lead to the more complex structure from a simpler structure. For example, बोलो सिंपल स्ट्रक्चर था, सिंपल भी नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर था, उसमें से कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर.
फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड बिकम कोलेस्टेरॉल, एसिटिक एसिड, सिंपल एसिड, एसिटिक एसिड टर्न्स इनटू द कोलेस्टेरॉल। बोलो, हमने फर्स्ट लेक्चर में कोलेस्टेरॉल के स्ट्रक्चर कर लिया था, वो ऐसा 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 जो के अभी मैं कुछ वो नहीं करता, रिफर कर लेने का। or lead to a simple structure from complex structure. For example, glucose become acetic acid in our muscles. बोलो क्या है दूसरा क्या है? और it turns from the simpler lead to the simpler structure from a complex. complex में से कैसा बन सकता है? simple. ग्लूकोज में से क्या बनता है? एसिडिक एसिड. कॉम्प्लेक्स में से सिंपलर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ग्लूकोज, एसिडिक एसिड कर दे तो वो ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है, तो ग्लूकोज में से एसिडिक एसिड बना। द फॉर्मर केस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवेज, एनाबोलिक पाथवे। कुछ नवा बनता है तो उसको बोलते हैं एनाबोलिक। द लेटर कंस्टिट्यूट डिग्रेडेशन एंड हेंस आर कॉल्ड केटाबोलिक पाथवे। जब डिग्रेडेशन होकर सिंपल सिंपल बनते तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? केटाबोलिक। तो ये दोनों लाइन के साइड पे ऐसा कर दो और लिखो डिफरेंस। में डिफरेंस पूछते हैं एनाबोलिक एंड केटाबोलिक। 3 वर्ड्स मेटाबोलिक, एनाबोलिक केटाबोलिक को कंबाइनली बोलेंगे एनाबोलिक, केटाबोलिक को बोलेंगे मेटाबोलिक। एनाबोलिक एंड केटाबोलिक। असेंबली ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द एमिनो एसिड रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। ऑलवेज प्रोटीन पे ज़्यादा करते क्योंकि प्रोटीन इतना लार्ज है, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्टूडेंट को समझ में भी आता है। अभी हम समझते हैं, बोलो क्या होता है? दिस ऑल आर द एमिनो एसिड्स। चलो, दिस टू एमिनो एसिड ग्रुप टुगेदर डाइपेप्टाइड, बाइपेप्टाइड बॉन्ड। ये थर्ड आया, ये फोर्थ आया, पॉलीपेप्टाइड बना। पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो वो काय में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन। Now you should be clear that to form the polypeptide, what should be there? Formation of the peptide bond. As these peptide bonds are formed, what will be happen? If these are the form, this peptide due to this to form this peptide bond, energy is required in which form? ATP. Assembly of the protein from the amino acid requires energy input. On the other hand, catabolic pathway leads to the release of energy. कितने catabolic ऐसे उसमें से रिलीज होती है एनर्जी? कौन से? अभी हम समझते। ये तो हुआ एनर्जी इनपुट, एनर्जी रिक्वायर्ड। फॉर दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स एनर्जी मीन्स एटीपी इज रिक्वायर्ड, एटीपी यूज हुआ। अब बोलो एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज क्या हुआ? ग्लूकोज, ग्लूकोज टर्न्स इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन, CO2 प्लस H2O ने सब बन गया। तो क्या हुआ? ग्लूकोज का कंबसन मीन्स व्हाट इज रिलीज? एटीपी। तो बोलो ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होके सब बना, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या बना? मोस्ट इंपोर्टेंट एटीपी। तो वो एटीपी मिली, तो वो एटीपी से ये हुआ। कोई एनर्जी रिलीज करता है ना, कोई एनर्जी यूज करता है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच एनर्जी इज लिबरेटेड। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। हाईलाइट करो, ग्लूकोज में से एनर्जी रिलीज करने वाला प्रोसेस कितने स्टेप में होता है? 10 स्टेप, चैप्टर नंबर 14, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। हाईलाइट करके बाजू में क्वेश्चन मार्क रख दो, ग्लाइकोलिसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। बोलो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो किस में स्टोर हुई? केमिकल बॉन्ड। किसके केमिकल बॉन्ड? एटीपी। As and when needed, this bond energy is utilized by for the biosynthetic, osmotic, mechanical work. हाईलाइट करो, यूम ऑल द लिविंग में कौन से फंक्शन के लिए एटीपी यूज होती है? बायोसिंथेटिक, ऑस्मेटिक, ऑस्मेटिक मीन्स रेगुलेशन ऑफ द वाटर, मैकेनिकल वर्क, ये मूवमेंट, दिस और राइटिंग, दिस ऑल आर मैकेनिकल, दिस ऑल्सो रिक्वायर एटीपी एनर्जी।
डेट वी परफॉर्म बोलो कौन से 3 मेनली इसके बिसाइड दिस अदर एग्जांपल्स आर आल्सो बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस 3 व्हाट बायोसिंथेटिक ये प्रोटीन बनता है ये बनता है वो सब बोलो। सेकंड वन क्या है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन बॉडी। थर्ड वन मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म। The most important form of the energy currency in living system is the bond energy in chemical called adenosine triphosphate ATP. How do living organisms derive their energy? What strategies they have evolved? How do they store this energy in what form? How do they convert this energy into work? You will be study and understand all this under the sub-discipline called the bioenergetics. Highlight karo bioenergetics. Later in your higher classes, in your in college level, particularly in MBBS and that. है ख्याल में? So look, this should be written 2 times for the homework. I will check on next Sunday. Okay, best of luck.